Hello friends, good morning to all of you. Welcome to Vimla Vidyalaya e-classes online lecture. First, we have to discuss about BCom Sem 5 Subject Management Account Chapter number 2 Ratio Analysis. Now we have to continue sum number 18 Aarti Limited. In previous lecture, we have to discuss about Aarti Limited sums in formula 1 and 2, stock turnover ratio, then ownership ratio. Okay, here today lecture we have to start formula number 3, current ratio. Let's start practical 18 Aarti Limited. Okay, current ratio, formula is equal to current ratio is equal to current assets divided by current liabilities okay, current assets divided by current liability. Now here see our current assets given in balance sheet. Land and building machinery, all are fixed assets. Temporary investment, I told you in past lecture, temporary investment, short term investment is a current assets. Okay, stock, debtors, prepaid expenses, advance, income tax, bills receivable, cash balance and Bank in Baroda balance, all are current assets. We have to take in our sums in formula. Let's temporary investment, current assets and current liability. First, temporary investment 2,70,000, stock 1,75,000, then debtors 2 lakh, prepaid expenses 30,000, advance, income tax 80,000, then bills receivable 50,000. Okay, cash balance 20,000 or Bank in Baroda 40,000. Here current liability, ये है शेयर कैपिटल, देन रिजर्व फंड, ऑल डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लिएबिलिटीज, creditor, bills payable, PF provident fund, BOD,
of Dena Bank, then outstanding expenses. All are current liability. Okay. Current liability. Creditors. ₹1,00,000. Bills payable 50,000. Provident fund 30,000. BOD 40,000. Then outstanding expense 10,000. Our current liability 2,70,000 plus 1,75,000, 2,30,000, 80,000, 50,000, 20, then 40, 8,65,000. ठीक है, 8,65,000. Our current assets 1,50,000, 30,000, 40,000, then 10,000, 2,30,000 our current liability. Done. 8,65,000, 2,30,000, 2,30,000. ओके, देख लो एक बार. 8,65,000 divided by 2,30,000, 3.76 jam 1. Okay. Next. Next ratio is liquid ratio. Fourth number, liquid ratio. Okay, liquid ratio is equal to liquid assets divided by liquid liabilities. यहाँ पे हमें लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लिएबिलिटी दोनों लेनी है, लेकिन कैसे लेंगे? हमारे पास जो करंट एसेट्स है उससे से हम लोग स्टॉक लेस करेंगे तो हमें मिलेगा लिक्विड एसेट्स, और बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करेंगे तो हमें मिलेगा लिक्विड लिएबिलिटी. क्यों? क्योंकि लिक्विड रेशियो यानी हमारे हाथ में ऑन हैंड कैश कितना है, हम लोग क्विकली वेरी इजीली अपने डेब्ट्स कवर कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड्स. ओके, वो हमें देखना है. और ये जो स्टॉक और बैंक ओवरड्राफ्ट है वो दोनों ही ऐसे एसेट्स है, हम वेरी फास्टली इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं. इसलिए हम लोग करंट एसेट्स में से ये दोनों को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लिएबिलिटी. देखते हैं यहाँ पे लिक्विड एसेट्स is equal to current assets टोटल जो करंट असेट्स है वो हमारा, उसमें से हम लोग स्टॉक को
डिडक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास लिक्विड लिएबिलिटीज टोटल करंट लिएबिलिटीज, उसमें से हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस करेंगे। ओके, तो आगे हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास 8,65,000 और 2,30,000 करंट असेट्स और करंट लिएबिलिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,65,000 टोटल करंट एसेट्स है हमारे पास, करंट लिएबिलिटी है 2,30,000, उसमें से हम लोग स्टॉक और बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करेंगे। देख लो यहाँ पे 1,75,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000। 1,75,000 और यहाँ पे है 40,000। दोनों ही फॉर्मूला में एक साथ ही यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। क्या किया, करंट एसेट में से स्टॉक और करंट लिएबिलिटी में से मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लेस कर दिया। 8,65,000 माइनस 1,75,000, 6,90,000। हमारा क्या आया, लिक्विड 6,90,000, देन 1,90,000। We have to apply our formula. 6,90,000, 1,90,000, okay, divided by 1,90,000, क्या मिलेगा, 3.63 जैम 1। ये हमारा है लिक्विड रेशियो, देख लो। ओके, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय capital employed is equal to net profit divided by capital employed into 100। ओके, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है हमें, V4 का। V4 का लेना है। देखते हैं नेट प्रॉफिट दिया है यहाँ में। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000। 2,50,000 नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया है B4 का, देख लो, ठीक है। तो वही हमें ले लेना है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉय यानी कैपिटल एम्प्लॉय में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस और डिबेंचर। ये सभी शेयर फंड और लॉन्ग टर्म लिएबिलिटी सभी हमें लेना है। उसमें से हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट यानी फिक्सियस एसेट्स लिस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल
जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, %8 डिबेंचर, इसमें से हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। यानी 4 लाख 2 लाख 1,70,000 2,50,000 और here debenture discounts is 5,000. Okay, so our capital employed $10,50,000. $10,50,000 $2,50,000 into 100 divided by $10,50,000 24.63%. 63% our capital employed. ओके, ये हमारा 3rd नंबर का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नंबर 5th, फॉर्मूला नंबर 5th. देन रेट ऑन रिटर्न ऑन 6 नंबर, रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू, ये इसका जो फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट और इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल आया इसलिए. तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 200. ओके, ये अपने फॉर्मूला है. देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो लेना है हमें आफ्टर का लेना है. आफ्टर का नेट प्रॉफिट आगे हमने फाइंड आउट नहीं किया था, तो अब कर लेते. इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दोनों हमें टैक्स बुक में दिया है, वो लिख लेते हैं हम लोग. नेट प्रॉफिट देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है तो हम लोग डिविडेंड फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी उसमें हम लोग 0 या डैश कर सकते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख हमें 4 लाख नहीं दिया. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड इंटरेस्ट, ओके, माइनस टैक्स, सॉरी, इंटरेस्ट, आगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। इसमें से हमें टैक्स बुक में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट का दिया है 2,50,000, बिफोर का दिया है 2,50,000। यहाँ पे इंटरेस्ट डिबेंचर, जो हमारे पास डिबेंचर है उसके 8% करेंगे हम लोग, तो हम क्या मिलेगा हमें, डिबेंचर है हमारे 2,50,000, 2,50,000 इंटू 8 20,000, ओके। इसमें से हम लोग डिडक्ट करेंगे तो 2,30,000। यहाँ पे टैक्स रेट भी दे दिया है, देखो, रेट ऑफ टैक्सेशन 50%, यानी 50% हमें टैक्स रेट दे दिया है यहाँ पे। 2,30,000 डिवाइडेड बाय 2, 1,50,000 या 1,50,000, ओके। यानी जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना आया आफ्टर का 1,50,000, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4,00,000, 28.75%, ओके। नेक्स्ट 7 नंबर, नेट प्रॉफिट रेशियो net profit ratio is equal to net profit divided by sales into 100, ओके। ये हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट हमें ये कौन सा लेना है, आफ्टर का, सभी में आफ्टर का। आगे हमने देख लिया था 1,15,000, 1,50,000 इंटू 100, आवर सेल्स कितना है। आगे के जो लेक्चर था उसमें हमने टोटल सेल्स फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। आगे जो था लेक्चर उसमें कितना सेल्स था, 12,50,000। हमने क्या किया था, हमारे पास जो ये देख लो, आगे के जो लेक्चर थे उसमें हमने फाइंड आउट किया था, फिर भी आप देख लो, हमारे पास कैश सेल्स ऑफ 20% ऑफ टोटल सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट, ये सब हमने देखा था। तो क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों को मिला के 12,50,000 क्या मिला था हमें, टोटल सेल्स। वो आगे हमने देख लिया था, वो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। आगे के लेक्चर में आप एक बार फिर से देख लेना अपना सेल्स।
9.2%। ये है 7 नंबर। अभी 8 नंबर में आएगा लास्ट रेशियो अवर क्रेडिटर रेशियो। क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो is equal to creditors plus bills payable divided by credit purchase into working डेज। यह वर्किंग डेज, ठीक है, दे दिया है। डेटर रेशियो और क्रेडिटर रेशियो दोनों में कंसीडर हमें कितना करना है, 360 डेज। क्रेडिटर टैक्स बुक में लिएबिलिटी साइड हमें दिया है 1 लाख रुपीस। बिल्स पेबल 50,000। क्रेडिट परचेस पता नहीं, देखते हैं टेक्स्ट बुक में है या नहीं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी कि हम लोग क्रेडिट परचेस इंफॉर्मेशन दी। आई मीन टू से डायरेक्टली क्रेडिट परचेस हमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। इंफॉर्मेशन कैसे दी है, ग्रोस प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सेल्स, वो सब हमने फाइंड आउट किया है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपना क्रेडिट परचेस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। हम ये सोचेंगे कि क्रेडिट परचेस का कोई ऐसा फॉर्मूला है। हाँ है ना, कौन सा वाला, तो वो जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देख लो यहाँ पे परचेस मिला, तो यानी हमें इसी हिसाब से क्रेडिट परचेस मिल सकता है। तो कैसे करेंगे, हमारे पास वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ goods sold is equal to opening stock plus purchase minus closing stock। ओके, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है 1,25,000। ओके, परचेस नहीं दिया और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,75,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमने आगे के जो लेक्चर था उसमें फाइंड आउट किया था। 7,50,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है, 1,25,000 प्लस परचेस माइनस 1,75,000। ओके, यानी 7,50,000 माइनस 1,25,000 plus 1,75,000 is equal to purchase is equal to 7,50,000
minus 1,25,000 plus 1,75,000, 8 लाख रुपीस हमें क्या मिला? परचेस मिला। ये परचेस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वन लाख प्लस 50,000 इंटू 360 डेज डिवाइडेड बाय 8 लाख, यानी 67.5 डेज, यानी हम लोग 67.5 डेज है, 67.5 डेज, 67 भी समझ सकते हैं और 68 डेज भी समझ सकते हैं। समझ में आया? दोनों में से हम लोग कोई एक समझ सकते हैं। ओके, ये हमारा है कौन सा? क्रेडिटर्स रेशियो। ओके, मैंने क्या किया? अपने जो भी फॉर्मूला थे उसमें जो अमाउंट नहीं थी वो फाइंड आउट की, और जो थी वो वहाँ पे अप्लाई करके सम्स को कंप्लीट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम वी हैव टू डिस्कस इन next lecture. Okay, thank you.